बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री के लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा था। आज हम उससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक है डिफरेंशिएशन बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इस टॉपिक का मेन क्रक्स ये है कि आपको इस टॉपिक में ये समझाया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि एक तो आपने केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस में फ़र्क कैसे मालूम करना है, डिफरेंशिएट कैसे करना है, और दूसरा ये आपको उसमें समझाया जाएगा कि कोई भी अगर आपको प्रोसेस बताया जाए कि ये काम ऐसे हो रहा है या ये इस काम में ये प्रोसेस हो रहा है, तो आप उस स्टेटमेंट को पढ़ के ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें कि ये काम केमिस्ट्री की किस ब्रांच के साथ हो रहा है या ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच जो है वो इसको कंसर्न कर रही है इस काम को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पैराग्राफ में आपको विनेगर के बारे में बताया गया है। विनेगर जिसे कि हम उर्दू ज़ुबान में, आम ज़ुबान में अपने सिरका कहते हैं। विनेगर जो है इट इज़ अ 5% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला इसी लाइन में दिया गया है, CH3COOH। आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड का फार्मूला। ये कलरलेस लिक्विड होता है और इसकी जो करेक्टरिस्टिक स्मेल है वो बिल्कुल विनेगर जैसी होती है, इसलिए इसको फूड फ्लेवरिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम बहुत सी फिज़िकल और केमिकल चेंजेस करते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे कि वो कौन सी ब्रांच के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसको यानी एसिटिक एसिड को हीट करते हैं और इसको इसकी गैशियस स्टेट में यानी वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं और वेपर्स जो है वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज कर रहे हैं ना। पहले वो लिक्विड फॉर्म में है, उसके बाद उसको गैशियस फॉर्म में लेके जा रहे हैं। तो हम कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच में काम कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट फिज़िकल केमिस्ट्री, बिकॉज फिज़िकल केमिस्ट्री डील्स विद द फिज़िकल स्टेट and which laws and applications which laws and theories are applicable on this process? The laws and theories of physical chemistry. Since it is a carbon containing compound and we have studied in our previous lecture that the compounds of carbon and hydrogen are studied in organic chemistry, so the second one will be organic chemistry. And as we have looked the structure of and formula of acetic acid, we know that apart or aside from carbon, there are two other elements which are hydrogen and oxygen present in acetic acid, and we have already know that the elements except carbon are studied in inorganic chemistry. So when we study about hydrogen and oxygen, we will talk about inorganic chemistry. And the study of chemical reaction that acetic acid undergo in our body or in the body of human beings will be biochemistry. And the uses of technology to prepare acetic acid at a very large scale will be under industrial chemistry. And the effect of radioactive radiation or neutron on this compound will be studied in the nuclear chemistry, and the effect of this compound on our environment will be studied in environmental chemistry, and the methods or instrument which will be used to determine its chemical composition will be in analytical chemistry. Next is the example 1.1. In this example, they have given you 8 different statements and they have asked that, and they have told you that which statement belong to which branch of chemistry. So first statement belongs to biochemistry, you can see in the answers as well, and the second belong to the environmental chemistry because it is talking about the greenhouse effect. The third one is the Haber's process. Haber's process is the large scale production of ammonia, so it will be industrial chemistry. Third one is ammonia, and we are talking about the ammonia, the production of ammonia, so we are talking about inorganic chemistry because it consists upon nitrogen and hydrogen.
which are element except carbon, so these are studied in inorganic chemistry, and you can see all the examples and the solution in this section. Students, there is an important question which was left on this page. This is page number 8 of this chapter. On the right corner of this page, you can see a box of science and technology. There is an important question in this box which can be asked in your exam, and the important theory which is hidden in this box is Dalton's atomic theory. You know, when the structure of atom was being started studying in the history, different scientists are in this queue which have discovered the structure of atom, and the very basic idea of the structure of atom was given by Dalton. Dalton, the complete name of Dalton is John Dalton, and John Dalton was a school teacher, and he gave idea about the structure of atom, and it was a very basic theory about the structure of atom. Now we will discuss the important postulates of the Dalton atomic theory, and at the end we will study the defects of the Dalton's atomic theory. This theory was presented in 1803. The main postulates of Dalton's atomic theory are: number 1, all the elements are composed of tiny indivisible particles called atoms. Elements are tiny indivisible particles. टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल का मतलब है कि बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं और वो इनडिविजिबल हैं, यानी उनको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा, इतने छोटे कि उनको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता. नंबर 2, एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मीन्स कि वो बिल्कुल एक जैसे हैं. दे हैव सेम मैस, उनका मैस भी एक जैसा है और उनका वॉल्यूम भी एक जैसा है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स कंबाइन और सेपरेट और रीअरेंज. दे कंबाइन इन सिंपल रेशियो. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट tells us about the law of definite proportion, that whenever elements combine to form compound there is a definite proportion or ratio present between them. हमारे पास बहुत सिंपल सी एग्जांपल है वाटर. वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है. अब वाटर जो है वो चाहे हम लेबॉर्ट्री में बना लें, चाहे हम समंदर में से निकाल लें, चाहे हम किसी दरिया में से निकाल लें, वाटर का फार्मूला हमेशा H2O ही रहेगा. क्यों? और उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशियो जो है वो 2:1 ही रहेगी. ये जो थर्ड पोस्टुलेट है ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है. ठीक है, कि जब भी एटम्स आपस में कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उनके दरमियान रेशियो जो है वो सेम रहती है. नंबर 4 है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एटम जो है उसको ना तो कभी हम खुद से बना सकते हैं और ना ही हम उसे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अब इसकी जो है डाल्टन की थ्योरी जो है, at that time when it was given in 1803, the level of scientific understanding was not very high, so it was considered a very milestone towards the structure of atom, but there are many defects in this theory. Now we will discuss the defects. The defects are given under this point number 4 in this paragraph. Dalton explained it very nicely, and Dalton explained the law of chemical combination very nicely, but there are some defects in this theory. The first defect is that Dalton said that atom is indivisible particle, but the latest researches shown that atom can be divided into subatomic particles, which are proton, neutron and electron. We will discuss their detail in this next chapter of this book. So this point that atom is an indivisible particle was wrongly understood by Dalton in his theory, and it was wrongly explained by Dalton in his theory. And the second point, that atoms of a particular elements are similar in all respects or they are identical, this was proven wrong by the discovery of isotopes. At the end of this chapter you will also be able to define what are isotopes. Isotopes are the atoms of an element which have same atomic number but different mass number. So the point that atoms of an element are identical was also proven wrong by the discovery of isotopes. So these are the faulty postulates of Dalton's atomic theory, and these are given
under point number 4 in this paragraph, you can make a heading on this paragraph as defects of Dalton's atomic theory. It is an important question and it may be asked in your exams as well. Next topic is the basic definitions. Basic definitions are the definitions which should be learned to understand the chemistry. The three basic definition are elements, compound and mixture. स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं और मिक्सचर किसे कहते हैं और उनके दरमियान डिफरेंस क्या है. इसमें सबसे पहले उन्होंने मैटर की डेफिनेशन आपको बताई है कि मैटर क्या है. एवरीथिंग विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर एंड मैटर हैज़ सम सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स. एक मैटर बहुत सी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में. हर चीज़ ही मैटर है बिकॉज हर चीज़ कुछ ना कुछ मैस है उसका और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है. तो हर चीज़ ही मैटर है, लेकिन हर मैटर दूसरे से डिफरेंट है. जैसे वाटर एंड सॉल्ट. वाटर भी एक मैटर है, सॉल्ट भी एक मैटर है, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टीज़ और हैं और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ और हैं. ठीक है. तो वी हैव मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर. ऑक्सीजन इज़ अ मैटर, वाटर इज़ अ मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ग्लूकोज, common salt, etc. These are different substances. First of all, we will define substance. A substance that cannot be converted to other simpler substances is called an element. Element, यहाँ पर उन्होंने element को define किया है कि एक substance कोई भी materialistic thing जो है that can be called as substance. तो substance ऐसा substance जिसको कि further हम simpler एलिमेंट्स में या सिंपलर यूनिट्स में हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते या उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, और इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि द प्योरेस्ट स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड एलिमेंट. ऑक्सीजन एक प्योर स्टेट में है. ऑक्सीजन को हम डिवाइड नहीं कर सकते. ऑक्सीजन को मज़ीद डिवाइड करेंगे तो वो ऑक्सीजन ही रहेगी. जैसे कि वाटर है. वाटर में दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. उसका फार्मूला होता है H2O. हाइड्रोजन वाटर को अगर हम जो है वो डिवाइड करें या वाटर को हम हाइड्रोलाइज करें तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस अगर करें तो उसमें दो सब्सटेंसेस बनते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लेकिन ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोलिसिस की जाए या ऑक्सीजन को किसी केमिकल मेथड में से पास ऑन किया तो वो ऑक्सीजन ही रहेगी. ठीक है. सो सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट क्या है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फर्दर सिंपलर कंपाउंड्स में या सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं किया जा सकता. और इसकी एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है. दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स. अब कंपाउंड क्या है. कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कंबाइन किए हुए होते हैं, कम्बिनेशन में होते हैं, और उनके दरमियान जो प्रोपोर्शन है या रेशियो जो है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है. जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताई कि वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो फिक्स है 2:1. H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 होती है. अब वो पानी आप नलके में से ले लें, वो पानी आप रिवर में से ले लें, किसी ओशन में से ले लें, खुद लेबॉर्ट्री में बना लें, उस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, 2:1 रहेगी. और उनके दरमियान नेचुरल फोर्सेस होती हैं जिनको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड. नेक्स्ट इज़ द मिक्सचर. द इम्प्योर स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड मिक्सचर. मिक्सचर जो है वो सब्सटेंस की इम्प्योर फॉर्म होती है और उसमें एक से ज़्यादा कंपाउंड्स हो सकते हैं किसी भी मिक्सचर के अंदर. ठीक है. जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि एयर इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं. इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसों का मजमूआ है. इसलिए एयर क्या है, एयर इज़ अ मिक्सचर. ठीक है. अगर हम वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व कर दें तो इट कैन ऑल्सो बी अ मिक्सचर बिकॉज इट कंटेन्स 2 कंपाउंड्स, वाटर एंड ऑक्सीजन. सिमिलरली
आइसक्रीम जो है वो भी एक मिक्सचर है, ठीक है। इसके अलावा पानी में अगर नमक हम डाल दें, हल कर दें, तो वो भी क्या बन जाएगा, वो भी एक मिक्सचर बन जाएगा। तो इस तरह से मिक्सचर क्या है, वो इम्प्योर फॉर्म है, क्योंकि उसमें कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होती। पानी का 1 गिलास है, उसमें हम 1 चम्मच नमक भी डाल सकते हैं, उसमें हम 2 चम्मच नमक भी डाल सकते हैं। तो देयर इज़ नो एनी फिक्स्ड रेशियो। सो mixture is an impure substance containing more than 2 compounds without a fixed ratio. So these are the basic definitions, and below the definition of mixture there is a paragraph in which it has been explained that there are 2 types of mixture: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homo means same, geneous mean composition. So homogeneous mixture are those mixture which have same composition or uniform composition throughout. And the example is air. एयर जो है उसमें हमें पता है कि किस परसेंटेज में कौन कौन सी गैस जो है वो मौजूद है। हाइड्रोजन गैस है, उसकी इतनी परसेंटेज है, ऑक्सीजन की इतनी परसेंटेज है, नाइट्रोजन की इतनी परसेंटेज है। अब वो एयर जो है वो चाहे पाकिस्तान में लाहौर की एयर हो, चाहे इस्लामाबाद की एयर हो, चाहे कराची की एयर हो, उन सब में जो बेसिक रेशो है ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, दैट विल रिमेन द सेम, ठीक है। सो इस तरह का सब्सटेंस जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहे उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम ना हो, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। जैसा कि अगर हम सॉइल देखें, मट्टी, एक फील्ड है हमारे पास, उसमें मट्टी है, मट्टी जो है वो भी एक मिक्सचर है, सॉइल इज़ अ मिक्सचर। अब फील्ड के एक कोने पे आप खड़े होते हैं, मट्टी लेते हैं, मट्टी की कंपोजिशन और होगी, दूसरे कोने पे चले जाएंगे, मट्टी की कंपोजिशन और होगी। तो सॉइल इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको जो है वो पूछा जा सकता है, इस पे डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसी जो है वो पैराग्राफ के साथ आप एक टॉपिक, छोटा सा बॉक्स देख सकते हैं साइंस टिडबिट्स का। साइंस टिडबिट्स में वो आपको बैड ब्रेथ के बारे में बताता है कि हमारी जो बैड ब्रेथ है वो किस वजह से हो सकती है। वो गार्लिक की वजह से हो सकती है, बिकॉज़ गार्लिक जो है वो इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। गार्लिक में 200 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। जब हम गार्लिक को खाते हैं तो वी फील अ बैड ब्रेथ, ठीक है, हम सांस में से स्मेल आती है। लेकिन गार्लिक जो है दैट इज़ वेरी गुड फॉर स्टमक, ठीक है, एंड इट अवॉइड्स द चांसेस ऑफ गेटिंग द स्टमक कैंसर। सो आपको इसके ऊपर भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन या कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द बैड ब्रेथ ड्यू टू गार्लिक, ठीक है। तो उसमें आप जो है वो ये पैराग्राफ आपको इसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे इन आवर टुमारोज़ लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़। ध्यान से सुने, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और अच्छे तरीके से दिल लगा के इसको याद करें। टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।